Hello students, this is Swapnil Lage. Welcome to the Maths Magnet. Now we are solving the practice set number 6. In that we have already solved the question number 1 to 7. Now start with the question number 8. So question number 8 is Pintu is taking 6 days more than those of the Nishu to complete a certain work, and if they work together they can finish that much work in the 4 days. We have to find the if they work alone, how many days they can take to complete that certain work. So let us assume that Nishu takes X days. So Nishu, let Nishu is taking X days to complete work. Okay, so we have assumed that Nishu is taking X days to complete a work. Then we can find from this information that work done by Nishu in 1 day. Okay, work done by Nishu in 1 day only. Okay, 1 day, that is 1 by X. Okay, if we are assuming that Nishu is taking X days to complete the certain work, then how much work he can do in one day? So that is 1 by X. Similarly, we have to find that Pintu, how much days Pintu took more is 6. Okay, so Pintu takes X plus 6 days. All right, X plus 6 days, because they have given this condition Pintu is taking 6 days more. So Pintu takes X plus 6 days to complete the work. All right, complete the work. Now we have to find that work done by Pintu in 1 day. So how much work 1 day? How much work he can complete in 1 day? How much work he can do in 1 day? That is 1 by X plus 6, right? So we have assumed that Nishu is taking X days to complete the certain work. Okay, so work done by Nishu in 1 day. 1 day में कितना काम करेगा वो? 1 by X करेगा. Similarly, we have taken this Pintu is taking X plus 6 days to complete a certain work. वैसे ही हमने वर्क डन, अगर पिंटू ने एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा? एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा? 1 by X plus 6 इतना काम करेगा. एंड ये हमें दिया गया है कि अगर दोनों भी एक साथ काम करते हैं, तो वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे? 4 दिन में. 4 days रिक्वायर है उनको वो कंप्लीट करने के लिए, वो सर्टेन काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा उनको? 4 days लगेगा. तो अगर हमने ये दोनों का एडिशन किया 1 by X एंड 1 by X plus 6, मतलब इफ वी डू दिस 1 by X plus 1 by X plus 6, ये हो गया दोनों का काम. ओके, ये 1 by X क्या है कि Nishu is completing this much work in 1 day and Pintu is completing this much work in 1 day, and they are finishing their total work. If they work together, they are finishing that work in the 4 days. All right, तो 4 days में जो काम वो खत्म कर रहे हैं, तो if both of them are taking 4 days to complete a certain work, then we can find that the total work done by both in 1 day. Okay, total work done by both in 1 day. जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि सिर्फ निशु को एक दिन में कितना काम करेगा? सिर्फ निशु 1 by X काम करेगा. सिर्फ निशु एक दिन में कितना काम करेगा? 1 by X करेगा. सिर्फ पिंटू एक दिन में काम कितना करेगा? 1 by X plus 6 इतना काम करेगा. अभी उन दोनों ने अगर काम किया एक साथ, तो वह कितना काम करेंगे एक दिन में? कितना करेंगे? राइट, वो एक दिन में काम करेंगे 1 by 4. एक दिन में काम कितना फिनिश करेंगे? 1 by 4. क्यों? क्योंकि उनको दोनों अगर एक साथ आते हैं तो वो काम फिनिश करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं. तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 1 by 4. ओके, सो पिंटू निशु इज टेकिंग 1 by X. ओके, एक दिन में निशु कितना काम कर रहा है? 1 by X कर रहा है. एक दिन में पिंटू कितना काम कर रहा है? 1 by X plus 6 कर रहा है.
तो दोनों कुल मिला के दोनों को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लग रहे हैं। तो 1 दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/4। तो ये दोनों का एडिशन किया तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन वी हैव दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वी कैन गेट आवर आंसर। ओके, तो ये यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो 1 इंटू एक्स प्लस 6, 1 इंटू एक्स प्लस 6 इज एक्स प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स कितना आएगा, x आएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू ये ब्रैकेट करना है, ये x प्लस 6 करना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। तो फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस x कितना आएगा, 2x आएगा, x प्लस कितना आएगा, x प्लस x कितना होता है, 2x होता है, प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स कितना आएगा, x स्क्वायर होगा, x इंटू 6 कितना होगा, 6x होगा, प्लस इज इक्वल टू 1/4। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, तो 2x प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस वन। ओके, सो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो दैट विल बी 8x प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। तो अभी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं हम, तो x स्क्वायर प्लस 6x, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 8x है उसे हम राइट हैंड साइड में लेंगे, तो क्या होगा वो माइनस 8x। ये 24 को राइट हैंड में लेंगे तो क्या होगा, करेक्ट, माइनस 24। तो हमें अभी इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, करेक्ट, पॉजिटिव x 6x निगेटिव 8x प्लस 6 माइनस 8 विल बी माइनस 2x इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अपना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ कौन सा मेथड है, और हम फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व इट विद द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 हो, जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो, माइनस 24x स्क्वायर। हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन और हमें सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए, एडिशन कितना चाहिए, 2x चाहिए, माइनस 2x। तो कैसे, कौन से दो नंबर है देखेंगे, ट्राई करते हैं। 6 इंटू 4 कितना आएगा, 24 आएगा। उसके बाद 6 माइनस 6 प्लस 4 कितना आएगा, माइनस 6 प्लस 4 विल बी माइनस 2, राइट। तो माइनस साइन 6 को देंगे तो हमें दो नंबर्स मिल गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हुआ, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन एक्सपेंशन मिला। तो अभी x को कॉमन निकालेंगे, तो x को कॉमन निकालने के बाद x माइनस 6 आएगा। तो ये हमें पता है कि ये जो ब्रैकेट यहाँ पे आएगा वही ब्रैकेट हमें यहाँ पे लिखना है। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा। उसके बाद सोचेंगे कि x माइनस 6 यहाँ पे रखना है तो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, तो प्लस 4 कॉमन निकालेंगे इज इक्वल। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर से x माइनस 6 को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है अभी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 को हम निग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ये निगेटिव में कभी भी नहीं आएंगे। तो क्या आया आंसर, क्या आया, x इज इक्वल टू 6। तो ये आंसर मतलब क्या है, ये आंसर मतलब हमने जो कंसिडर किया कि निशु इज टेकिंग x डेज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। तो निशु को कितना टाइम लग रहा है काम करने के लिए, तो निशु इज रिक्वायरिंग 6 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। एंड पिंटू को कितने डेज ज्यादा लग रहे थे निशु से, पिंटू को 6 डेज ज्यादा लग रहे थे। तो निशु का कितना डेज है, निशु का है 6 डेज।
तो पिंटू को इससे ज्यादा 6 डेज लग रहे, तो पिंटू का हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा था, इज इक्वल टू x प्लस 6, राइट। तो x प्लस 6 मतलब अपना x कितना है, 6 है, तो 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12। तो इसका मतलब पिंटू इज टेकिंग 12 days टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क अलोन। ओके, इफ दे वर्क अलोन, अगर उन्होंने खुद ने ही काम किया, एक ही बंदे ने अगर काम किया, तो वो काम फिनिश करने के लिए निशु को लगेंगे 6 days एंड पिंटू को लगेंगे 12 days। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपका डाउट्स पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, if 460 ओके 460 is divided by a natural number, 460 is divided by a natural number and quotient is 6 more than the 5 times the divisor and remainder is 1, okay, then we have to find the quotient and divisor। तो quotient and divisor फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने बचपन में, डिविडेंड, राइट। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, राइट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोशेंट इन प्लस क्या होता है, प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अभी पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसे सॉल्व करना है, तो हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो डिवाइजर जो है, डिवाइजर एक नेचुरल नंबर है, क्या बोला है कि इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, सो डिवाइजर if 460 is divided by a natural number, तो डिवाइजर जो है, डिवाइजर को हम कंसीडर करेंगे, लेट अपना डिवाइजर जो है दैट इज इक्वल टू x है। डिवाइजर कितना हुआ, x। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड है 460, राइट, 460। डिवाइजर कितना कंसीडर किया हमने, x किया। डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड 460 है, राइट, डिविडेंड है 460। उसके बाद फिर क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, तो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू क्या बोला है, क्वोशंट इज, सो क्वोशंट इज इक्वल टू 6 मोर देन, सो 6 मोर देन, समझ में आया, 6 मोर देन, तो 6 प्लस करना पड़ेगा, 6 मोर देन 5 टाइम्स, राइट, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर। समझ में आया कैसे किया। तो ये क्वोशंट इज, देखेंगे फिर से, क्वोशंट इज अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाए हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म से स्टेटमेंट में फिर से जा सकते हैं हम। कैसे जाएंगे, क्वोशंट इज मतलब इज इक्वल टू, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, राइट, 5 टाइम्स द डिवाइजर। सो वी गॉट अवर क्वोशंट हियर। आफ्टर दैट रिमाइंडर कितना बोला है उन्होंने, तो रिमाइंडर जो है अपना, रिमाइंडर है 1, राइट, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा डेटा जो मिला है हमें, ये पूरे सभी वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद वी कैन गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गेटिंग अवर आंसर। ओके, तो डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज 460, राइट, डिविडेंड इज 460 इज इक्वल टू अपना डिवाइजर कितना है, डिवाइजर x है, डिवाइजर x इनटू क्या करना है, क्वोशंट करना है। तो क्वोशंट क्या है अपना 5x प्लस 6, तो क्वोशंट इज 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 1 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x करेंगे तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू x करेंगे 6x आएगा, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे फिर से, तो क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ये जो 460 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा, सो वो निगेटिव हो जाएगा। तो 460 को राइट हैंड साइड में लेके गए तो वो निगेटिव हुआ। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें इक्वेशन मिला, ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम
सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें ये नंबर्स मिलने के लिए बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा इजी है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि ए बी सी के वैल्यूज लिखेंगे। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 6 एंड सी का वैल्यू है 459, राइट। तो 459 ये है सी का वैल्यू। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो b कितना है, 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a कितना है अपना 5 इंटू सी करेंगे तो c इज माइनस 459। तो इसे सिंप्लीफाई अगर किया तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, राइट। 6 स्क्वायर इज 36। उसके बाद ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इंटू 5 20 आएगा, 20 इंटू 459। तो यहाँ पे 36 प्लस 20 इंटू 459 कितना आएगा, 9180। ओके, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9216। ये समझ में आया। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हमने, जिसे डेल्टा हम लिख सकते हैं। डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना है अपना 9216 आ गया। इसके बाद हम फॉर्मूला मेथड से अगर हमें करना है तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला लर्न करना है। क्या है अपना फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये अपना फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट आवर फाइनल वैल्यूज। ओके, तो माइनस बी मतलब बी कितना है अपना, बी कितना था 6 था, बी कितना था 6। तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यूज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 9216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है अपना, ए का वैल्यू कितना था 5 था, तो 5 लिखा है यहाँ पे। तो हमें दो वैल्यूज मिलने वाले -6 प्लस माइनस 9216। ये नंबर जो है इसका स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9216 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो वो है 96। ओके, तो 96 2 इंटू 5 कितना आएगा 10 आएगा, राइट। तो 10 आया ये। उसके बाद इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू -6, पहला वैल्यू होगा पॉजिटिव 96 डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये एक वैल्यू है। तो इसका ये वैल्यू जो है उसका पहले x का वैल्यू फाइंड करके लेंगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट रूट फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा वो, -6 प्लस 96 इज 90 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आया 9 आया। x का फर्स्ट वैल्यू मिल गया हमें, x का फर्स्ट वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 9 आया, ये फर्स्ट वैल्यू आया। सेकंड वैल्यू भी आएगा x का, तो सेकंड वैल्यू क्या आएगा x का, x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन कितना आएगा, ये 102 माइनस 102 आएगा एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 10.2 आया, x का वैल्यू कितना आया -10.2। तो नेचुरल नंबर बोला है हमने, x क्या है, x क्या है अपना डिवाइजर है। क्या फाइंड किया हमने, x मतलब क्या फाइंड किया है, डिवाइजर। और उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है, if 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें दिया है नेचुरल नंबर है, तो x इज इक्वल टू 9 ये नेचुरल नंबर है, लेकिन x इज इक्वल टू -10.2 is not natural number, so we have to neglect this number and we have to consider x is equal to 9 here। तो हमें डिवाइजर मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया, डिवाइजर। लेकिन हमें क्वोशंट भी फाइंड करना है। तो क्वोशंट कैसे फाइंड करेंगे, हमने एक इक्वेशन बनाया था क्वोशंट का, तो वो क्या था 5x प्लस 6, राइट। क्यों, क्योंकि क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। ओके, तो 5 इंटू x कितना है अपना 9 है प्लस 6। तो 5 9 जा कितना होगा 45 प्लस 6 कितना होगा 51। तो अपना आंसर मिला। तो क्वोशंट कितना आया यहाँ पे, क्वोशंट कितना आया अपना
51 आया, डिवाइजर कितना आया, डिवाइजर इज 9 एंड क्वोशंट इज 51, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे मैंने ये 9216 ये वैल्यू डायरेक्टली लिखा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए कि अभी ये नंबर बड़ा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है बड़े नंबर का, वो हम यहाँ पे अभी वो कंसेप्ट लेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ बिगर नंबर। ओके, तो ये बहुत बड़ा नंबर है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर करते बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या नंबर है अपना, 9216, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 4 जा 8, 2 6 जा तो 2, इसे सो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2, 1 जा 2, 5 जा एंड 2 2 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 2, 7 जा एंड 2 6 जा, सो 576। ये जो स्क्वायर है वो 24 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे, 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो ये 24 का स्क्वायर है, ये मुझे पता है, तो यहाँ पे रोकेंगे। अभी यहाँ पे क्या मिला हमें, ये ग्रुप बनाएंगे 2, ये 2 2 का ग्रुप बनाया, ये 2 2 का ग्रुप बनाया, तो ये ये ग्रुप से एक 2 लेंगे, ये ग्रुप से एक 2 लेंगे एंड ये होगा 576। तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 24 का स्क्वायर है। ये कितना है, 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, राइट। तो 4, ये 2 इंटू 2 कितना है, 2 इंटू 2 कितना आया, 4 आया, तो 4 इंटू 24 करेंगे, 4 इंटू 24 तो किया जा सकता है, वो 96 आएगा, तो 96 आया हमारा आंसर। कितना आया, तो 96। ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डायरेक्ट लिया था, तो 9216 ये किसका स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर लर्न करने हैं, 30 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं, 15 तक के क्यूब्स लर्न करने हैं, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन 2.6, ये प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा था, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। दैट क्वेश्चन इज डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है उस क्वेश्चन में, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो आप यहां से आंसर्स देख के फिर आप वहां पे फिल इन द ब्लैंक कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये ट्रेपेजियम की डायग्राम दी गई है, और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम। उन्होंने जो लेंथ दिए है वो हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिए है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। उसके बाद हमें ये वैल्यूज पुट करने हैं, एक्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद हमें ऑल द साइड्स वी कैन गेट। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन में क्या दिया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, राइट। तो ABCD ये ट्रेपेजियम है, AB इज पैरेलल टू द CD, AB इज पैरेलल टू द CD दिया है। उसके बाद एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू एडिशन ऑफ 2 पैरेलल साइड। ओके, एडिशन ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो एडिशन ऑफ 2 पैरेलल, AB एंड CD पैरेलल है, तो AB प्लस CD एडिशन ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो AM यहाँ पे क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा, यहाँ पे AM आएगा, राइट। तो AM लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट इज 33। सो 33 इज इक्वल टू हाफ। अभी AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू x है, तो वी हैव पुट दिस वैल्यू ऑफ AB हियर, x प्लस CD का वैल्यू कितना दिया है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 लिखा, इनटू AM का वैल्यू कितना है, AM का वैल्यू x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 4। उसके बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखेंगे ये 2 यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 33 इंटू 2 कितना आएगा, 33 इंटू 2 आएगा 66, तो यहाँ पे 66 आएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये x प्लस 2x कितना होता है, x प्लस 1 इज 3x प्लस 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आया, x माइनस 4 आया। तो अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद के जो फिल इन द ब्लैंक है आप खुद वहां पे फिल करो, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इक्वेशन हम। तो 66 इज इक्वल टू कितना होगा, ये अभी
मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वो सॉल्व करेंगे। 3x इंटू, तो 3x को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 प्लस 1, ये फिर से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आंसर कितना आएगा, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x इज 12x प्लस 1 इंटू एक्स इज x माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x इज 11x, राइट, 11x माइनस 4, ये जो 60 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमें, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो माइनस 70 इंटू 3 आएगा माइनस 210x स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 11x चाहिए, ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनका एडिशन माइनस 11 आ जाएगा और जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 210 आएगा। तो 210 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 इंटू 10 अगर किया, 21 इंटू 10 इज 210 आता है। उसके बाद 21 एंड 10 का हमें फिर माइनस 21 प्लस 10 करना पड़ेगा, माइनस 21 प्लस 10 तो माइनस 11 आएगा, तो माइनस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, माइनस 21 इंटू प्लस 10, सो माइनस 210 आएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, मिडल टर्म स्प्लिट किया। अभी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, या 3x भी कॉमन ले सकते हैं हम, 3x कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो 3x कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आने के बाद यहाँ पे x बचेगा, माइनस 21x से 3x कॉमन आने के बाद कितना बचेगा, तो 21x से 3x कॉमन मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 7 बचेगा। ओके, तो 7 लिखेंगे। हमें पता है कि ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज हम से यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 7 लिखो इज इक्वल टू 0। तो फिर सोचेंगे यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अगर मुझे यहाँ 10x की जगह पे सिर्फ x रखना है तो क्या कॉमन निकलना पड़ेगा, प्लस 10 रखना पड़ेगा। ओके, तो फिर से ये x प्लस 7, x माइनस 7 कॉमन आया और यहाँ पे आया 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें डायरेक्टली रूट्स के वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पे रूट्स के वैल्यूज, अभी डायरेक्टली रूट्स के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो रूट्स के वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा 7, x के दो वैल्यूज आएंगे और x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 10 निगेटिव 10 बन जाएगा एंड ये 3 जो मल्टीप्लाई ये डिवाइड बन जाएगा। ओके, तो माइनस 10/3 आया रूट, एक पहला रूट आया x इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा रूट आया x इज इक्वल टू माइनस 10/3। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेंथ जो है, लेंथ अभी क्वेश्चन में हमें लेंथ पूछे, राइट, x का वैल्यू, x वैल्यू मतलब क्या है, ab है, तो x का वैल्यू मतलब ab, ये माइनस में नेगेटिव में लेंथ का वैल्यू कभी भी नहीं होगा, इसलिए वी हैव टू निगलेक्ट दिस minus 10/3 and we have to consider x is equal to 7. Now we can easily put these values and we can get our lengths of the trapezium. So first value AB का वैल्यू कितना आएगा, AB का मेजरमेंट कितना आएगा, AB मतलब x है, तो कितना आएगा x है अपना 7, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, DC करेंगे, DC इज इक्वल टू, DC का फॉर्मूला या टर्म दिए है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 करेंगे, 2 into 7 plus 1 is equal to 2 into 7 is 14 plus 1 is 15। उसके बाद नेक्स्ट साइड होगी AD एंड BC इक्वल है, राइट, AD एंड BC इक्वल है, तो AD उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, AD एंड BC, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x माइनस 2 दिया है, तो x माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 कितना आया 5 आया, AD एंड BC कितना आया, तो यहाँ पे
एडी एडी का 5 आया, बीसी का भी 5 आया, एबी का 7 आया साइड, डीसी कितना आया 15 आया, डीसी पूरा डीसी 15 आया, और क्या बचा है, और एएम बचा है, एएम। तो एएम एएम कैसे लिखेंगे, एएम एएम इज इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 4, तो x है 7 माइनस 4 कितना आया, am इज 3, तो am कितना आया 3 आया। ओके, सो वी हैव फाउंड ऑल द लेंथ्स ऑफ द ट्रेपेजियम हियर। सो अपना आंसर कंप्लीट हुआ। सो we have completed the 2.6 practice set number 2.6. If you found this video helpful, please like it and share it with your friends, and most importantly subscribe the channel and hit the bell icon for the next updates. Thank you.